Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. Good morning, dear students. Welcome back to all of you in your BSM class. In our previous class, we discussed about the various objectives of the business. So, dear students, what is the objective of the business? What is the main motive of the business? The main motive of the business is to earn profit. No doubt, earning profit is the most important motive of every business. But instead of that, every business is also having another objectives. The various objectives of the business are mainly classified into how many types? Into three types. What are they? The various objectives are that may be economic objective, that may be social objective, that may be human objective. So the economic objective is ultimately related to the business, but the social objectives are related with the society. ठीक है, so it is also discussed in our previous class that the economic objectives are also covered. The various economic objectives of every business. The first economic objective is to profit earning. As we all know, every business is started to earn profit. No doubt, profit earning is the most important motive. Profit is not only required for its existence, but also it requires for its ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ग्रोथ के लिए, एक्सपांड करने के लिए भी बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. देन also we discuss in the economic objective production of quality goods, because profit is mostly dependent on the sale. If sale is increases, then only profit can be increases in the business. ठीक है. So production of quality goods and also optimum utilization of the resources. So what are the resources which are available in the business? The various resources which are available in the business are that may be man, that may be material, that may be machinery. ठीक है. So man, material, money, machinery, all these things are called the resources of the business. So we have to use maximum the resources in order to get benefit out of the resources. Okay. So और also point था वहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि क्रिएटिंग मार्केट. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. सो मार्केट को क्रिएट करना, दैट मीन्स द प्रोड्यूसर हैज टू थिंक हाउ टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. ओके. सो मार्केटिंग, क्रिएट मार्केट, that also we discussed in the economic objective. So dear students, in this particular class we are going to discuss the social objective and also the human objective of the business. ये जो objectives है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा. 8 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. सो यू हैव टू राइट एज इट इज़ गिवन इन योर नोटबुक, नोट फ्रॉम द बुक्स. बुक में बहुत सारे दिया है, आप लोगों को नोटबुक से पढ़ना पड़ेगा और नोटबुक में जितना लिखा है उसके हिसाब से आप अपना पॉइंट बना के लिख सकते हो. ठीक है. So the various objectives. So the objectives are of generally, it is divided into 3 categories. The first one we had already discussed, that is your economic objectives. Then the second one is your social objectives. Okay. Then the third one is your human objective. So dear students, as we had already covered, the economic objective is related to the business. ये वाला जो पॉइंट है ये बिजनेस के लिए रिलेटेड होता है, लेकिन जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द सोसाइटी. सो इन दिस पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the benefits which is given by the business to the society.
बिजनेस जो होता है वो क्या सोचेगा, मैं जो एरिया में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो सोसाइटी में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उसको क्या बेनिफिट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे बिजनेसमैन जो प्रोड्यूसर होता है उसको सोचना पड़ेगा कि वो सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बाहर का एक कंपनी है जो आके इंडिया में बिजनेस कर रहा है, जैसे कि मान लो सैमसंग, थम्सअप, कोको कोला, जितने भी मतलब ये सब कंपनी है, ये सब कंपनी कहाँ गए, बाहर के आउटसाइड कंपनीज आर देयर। सो दीज आउटसाइड कंपनीज दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सो दे हैव टू थिंक हाउ टू डेवलप द सोसाइटी, हाउ टू डेवलप द नेशन वेयर दे आर डूइंग देयर बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव पॉइंट में, जैसे कि पहला वाला पॉइंट है द बिजनेसमैन हैज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर हैं, जो लोग रहते हैं वो सोसाइटी में, उन लोगों के नीड के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो होगा बिजनेस का क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ customers. So here in this social objective case, the businessman or the producer has to think what is the need of the customer, what is the requirement of the customer, what is the preference of the customer. On that basis the business has to produce the goods or the product. Then what are the other points? They have to produce quality goods. Quality goods at रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे दूसरा जो सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, हियर द प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स। क्वालिटी गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग एट ए रीजनेबल प्राइस। एक मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट बिजनेसमैन मार्केट को दे रहा है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट का क्वालिटी ही नहीं, उसके अलावा क्या होना चाहिए, वो दैट शुड बी गिवन एट ए रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल मीन्स मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस में वो अवेलेबल होना पड़ेगा मार्केट में। देन व्हाट आर द अदर पॉइंट्स, लाइक क्रिएटिंग employment opportunities. So in this particular point, it is also the responsibility of the business to give employment opportunity to the society. जो मतलब सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन लोगों को काम देना पड़ेगा, उनको लाइवलीहुड देना पड़ेगा, ताकि वो लोग काम करके अपने घर में कुछ सैलरी ले पाएंगे, उनका जो लिविंग का जो प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी वेयर दे आर डूइंग देयर बिजनेस। देन द फोर्थ पॉइंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट at right time. So this is also another social objective, that the business has to make payment to the government the various taxes like it may come sales tax, it may come GST, it may come other taxes. All these taxes, जितने भी सारे taxes हैं, all these taxes should be paid to the government by the business at right time. राइट टाइम में अगर वो लोग पैसे पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट वो पैसे से क्या करेगा, गवर्नमेंट कैन डू वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ दैट मनी. सो हियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टू making payment of the taxes to the government at right time, so that government can use that fund in order to make social welfare activities. जितने भी आप लोग रास्ते देख रहे हैं, जितने भी ब्रिज देख रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट का चल रहा है, वो सब कैसे चल रहा है, ड्यू टू टैक्सेस पेड बाय अस. हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहा है. तो अगर हम लोग टैक्स देना बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट कैसे करेगा काम. ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक, वो अपने घर से कुछ ला के दे रहे हैं, या फिर जो श्री नरेंद्र मोदी है वो अपने घर से कुछ ला के दे रहे हैं. ऐसा तो नहीं है, हमारा ही पैसा है और वो लोग सिर्फ उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं.
So it is our responsibility to give the money at right time. So that is also the responsibility of the business. Or next point, business can open hospitals, schools, पार्क्स। ठीक है, तो बिजनेस और भी क्या कर सकता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए? बिजनेस कैन ओपन स्कूल, बिजनेस कैन ओपन हॉस्पिटल, बिजनेस कैन ओपन पार्क्स टू द कॉमन पीपल, फॉर द कॉमन पीपल, एंड बिजनेस कैन ऑल्सो ओपन म्यूजियम्स। ठीक है, तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस जितना भी सारा काम करेगा वो सारे एक्टिविटीज़ कहाँ पे आएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर में आएंगे। एंड ऑल्सो अनदर पॉइंट इज ऑल्सो देयर दैट टू रेड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो मतलब एनवायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में, जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, दैट पोल्यूशन इज ऑल्सो रेड्यूस्ड बाय द बिजनेस। दैट इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू डिक्रीज और टू reduce the environmental pollution. So these are the various social objective. The first point of the business in social objective, the responsibility of the business is they produce the goods as per the need and requirement of the customers. Then the second point you can see here also, second point is the goods produced by the business that should be provided quality goods at a reasonable price. Goods का quality भी अच्छा होना चाहिए and that is also available at a minimum price. The third point is here creating employment opportunity for the society. Employment opportunity ज़्यादा से ज़्यादा create करना पड़ेगा and also making payment of taxes to the government at right time. Government को ठीक टाइम में टैक्स पे करना पड़ेगा and also the last one is your business can open various society service activities, social service activities like opening of hospital, opening of school, opening of park, opening of museums etc. for the general public. ठीक है, तो और क्या हो सकता है यहाँ पे? अभी अगर मतलब आप लोगों में से अगर कोई भी भुवनेश्वर में जो नालको है या फिर अगर कोरापुट के हैं तो आप लोग वहाँ पे हेचल देखे होंगे। हेचल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या फिर नालको भी वहाँ पे है दामनजोड़ी में, कोरापुट में दामनजोड़ी में नालको प्रोजेक्ट NALCO नालको। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है हेचल है और एक नालको है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप लोग कभी भी जाओगे कोरापुट या फिर अगर कोई बच्चा कोरापुट का है तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब उनका जो हेचल है एक बहुत ही बड़ा सराउंडिंग में उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पे हेचल का अपना स्कूल है जहाँ पर कि वो जो कोरापुट सुनावेड़ा में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बच्चे भी फ्री में पढ़ रहे हैं। फ्री में मतलब मिनिमम फीस में पढ़ रहे हैं। और हेचल का अपना एक हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। उसी तरह नालको जो है दामनजोड़ी में, वहाँ पे भी अपना स्कूल है नालको का एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स भी है, पार्क्स भी है, एक बहुत बड़ा पार्क है, मंदिर है, सारे वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें जनरल पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कम्स अंडर बिजनेस कैन ओपन, business can do various social service activities. And the last one is it is the responsibility of the business to minimize the environmental pollution. जो environmental pollution हो रहा है उसको minimize करना भी business का responsibility है. Let us discuss the third objective, that is your human objective. So as we had already discussed, these human objectives are related to the employees. These human objectives are related to the employees. So employees are the main assets for every organization. बिजनेस तो चलेगा अभी मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, तो जो रिलायंस कंपनी है या फिर टाटा कंपनी है उनका नाम कैसे हाईलाइट हुआ, उनका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है? ड्यू टू द वेरियस एम्प्लॉयज़, ड्यू टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ द बिजनेस कैन ग्रो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में उसका अगर एम्प्लॉय ठीक से है और उसके एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय अगर इफेक्टिव है तो बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो ये SSBM NK नगर है, तो SSBM NK नगर का बिल्डिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ड्यू टू आप लोगों को क्या लगता है, इसके जो बिल्डिंग है और दूसरी तरफ इसके जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, किसके वजह से SSBM ग्रो कर रहा है? इसके बिल्डिंग या फिर इसके एसेट्स के वजह से SSBM ग्रो कर रहा है, या फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ उतना इफेक्टिव है, एम्प्लॉयज़ उतना डेडिकेटेड है, एम्प्लॉयज़ उतना काम कर रहे हैं, दैट्स वाई SSBM ग्रोस।
क्या होगा आंसर? ड्यू टू इट्स एम्प्लॉइज़। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ अच्छे हैं, एम्प्लॉई अगर सेटिस्फाइड हैं, एम्प्लॉई अगर ठीक से काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बिजनेस का जो गोल है वो गोल अचीव होगा, बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज़। जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन इन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज हियर पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड सैलरी। गुड सैलरी मतलब अच्छा सैलरी देना पड़ेगा। सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे ए गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, ए कॉम्पिटिटिव सैलरी टू इट्स वर्कर्स। सैलरी भी बोल सकते हैं, वेजेस भी बोल सकते हैं, रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं, तीनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ए गुड वेजेस और वी कैन से कॉम्पिटिटिव वेजेस और सैलरी टू द वर्कर्स सो दैट दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मोर डेडिकेटेडली। ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट और क्या होगा बिजनेस का जो मोटिव, बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर so the second point is here providing better working conditions to the employees. So what do you mean by better working condition? जो जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं वो जगह अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए? जो जगह पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या चाहिए? देयर शुड बी वेंटिलेशन फैसिलिटी, देयर शुड बी प्रॉपर एयर फैसिलिटी, देयर शुड बी ए प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। तो ये सारे चीज़ अगर होगा एक जगह में, वहाँ पे एक आदमी कंफर्टेबली काम कर सकेगा। सो दैट इज़ बेटर वर्किंग कंडीशन। जो जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स उसका जो वेंटिलेशन सिस्टम, एयर सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, वाटर फैसिलिटी, ये सारे चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू वर्कर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर। ट्रेनिंग मतलब देखो, एक आदमी कभी तो मतलब अपने आप में ही वो एक्सपर्ट नहीं होगा ना। जब वो ट्रेनिंग लेगा, जब एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद वो और भी अच्छे से काम करेगा। सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग various types of benefits, providing various types of benefits, various benefits like housing facility, allowance facility, transportation facility, communication facility। ये सारे चीज़ मतलब अगर हम लोग एम्प्लॉय को देंगे तो वो लोग और भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सपोज मान लो ऑर्गेनाइजेशन एक अपना जो बिजनेस है उसका एक पर्टिकुलर बस है और वो बस में ही लोग जाते आते जाना आना करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, बिजनेसमैन। उसी तरह ही और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बातचीत करने के लिए फ्री में फ़ोन का डाटा या फिर फ़ोन रिचार्ज कंपनी की तरफ से फ्री होगा, या फिर मतलब इंश्योरेंस फैसिलिटी हो सकता है, या फिर स्कूल टू देयर चिल्ड्रन, एम्प्लॉय का जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन रहेगा स्कूल के तरफ से। अगर ये सब होगा दैट ऑल्सो मोटिवेटेड द एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड। और क्या हो सकता है? उन लोगों को प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनस, ये सारे चीज़ भी उन लोगों को देना पड़ेगा। सो प्रमोशन, एक आदमी एक जगह पे एक पोजीशन पे काम कर रहा है, उसको मतलब प्रमोशन दिया जाएगा दूसरे लेवल के लिए, दूसरे पोजीशन के लिए। इंसेंटिव, अभी मतलब जैसे दशहरा हो गया या फिर दिवाली हो गया, उसमें कुछ बोनस की तरह, इंसेंटिव की तरह दे दिए। तो अगर ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे देन द एम्प्लॉयज़ आर फील मोटिवेटेड एंड ऑल्सो वी हैव टू पार्टिसिपेट देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू पार्टिसिपेट द एम्प्लॉयज़ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस so that they feel more motivated. So dear students, this is all about your social and human objective. In human objective we discussed the human objective related to the employees.
सो द वेरियस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लाइक पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव वेजेस, ठीक ठाक सैलरी देना पड़ेगा, बेटर वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, they have to make participate in the decision making process, the various benefits like housing facility, transportation facility, education to the children of the employees, that should be given by the organization, various facility like promotion, incentive, bonus, these are should be given to the workers. So you have to remember all these points, these three, economic, social as well as individual, all these 3 points were came in 3 mark question. Like the question may came, but what do you mean by social objectives of the business, or what are the various social objectives of the business? So you have to write these points. You have to write minimum 5 points, not required to study it from the books. You can study this point from the notebook also, क्योंकि बुक में ज़्यादा दिया है, आप लोग समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क के हिसाब से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। स्टिल इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, फील फ्री टू कॉल मी, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।